फ्रॉम एनिमेशन, एनिमेशन के अलावा भी आप कई तरीकों से अपने प्रेजेंटेशंस को अच्छा बना सकते हैं। कैसे? जैसे कि आप साउंड इफेक्ट डाल सकते हैं। साउंड इफेक्ट जैसे कि ताली बजाने वाला, हंसने वाला, या फिर और भी कई सारे साउंड इफेक्ट आते हैं, जैसे कि ट्रम्पेट साउंड इफेक्ट। I will request you all to mute yourself, because if that won't happen, the voices comes in. Mute yourself. Mute. Mahi, mute yourself. Okay. Follow the given steps to apply animation effects to a slide objects. Open any presentation. Select the object you want to animate. Click on Animations tab and select the Add Animation button present in the Advanced Animation group. A drop-down menu will appear with 4 different kinds of animation effects, which are as follows. For example, entrance. As the name suggests, entrance मतलब क्या होता है, किसी को पता है? What do you mean by entrance? Anyone? Shubh, what do you mean by entrance? Do you know? No ma'am. No? अरे तुम लोगों ने मूवी देखी है, हीरो एंट्री करता है, इसका मतलब क्या होता है? Entrance. एंट्रेंस मतलब आना। हीरो की एंट्री हो गई बोलते हैं ना, हीरो की एंट्री हो गई या विलन की एंट्री हो गई, मतलब दैट इज ऑल्सो एंट्री एंड एंट्रेंस आर सेम। तो मतलब आना। As the name suggests, these effects decide the manner in which an object enters into the slide during the slideshow. These effects may be object fade gradually into focus, fly onto slide from an edge, bound into view and so on. अच्छा, आप लोगों ने YouTube वीडियोस तो देखी होंगी अपने फेवरेट जो भी आप लोग के फेवरेट हैं, हीरो हीरोइन या फिर जो भी पीपल को आप फॉलो करते हैं, है ना? तो नीचे देखते होंगे ना, उनके YouTube वीडियो के नीचे आता रहता है फॉलो करके, आता है? Yes ma'am. देखा है सभी ने? रुचिका, रुचिका, आर यू देयर इन द क्लास? ठीक है, तो वो आता है ना, तो इसका मतलब ये है। हेलो, यस शुभ। Ma'am, your voice is not clear. Anyone else having problem with my voice? No ma'am. No ma'am. No ma'am. No ma'am. Shubh, No, ma'am. why don't you change your position and come to a place where you're having full network? Okay, ma'am. हाँ, तो कभी भी आप लोगों ने YouTube वीडियो देखा होगा जिसके नीचे ना फॉलो का आता रहता होगा, ब्लिंक करता होगा, या फिर वो स्लाइड होता रहता होगा, या फिर चलता रहता होगा लूप टाइप के, कि फॉलो @ जो भी मतलब, या फिर कोई भी नीचे इंफॉर्मेशन आती रहती है कि हाँ ये इसका नाम है। नाम तो आता ही होगा कि कौन है ये, है ना? आपने कोई भी, या न्यूज चैनल में ही आपने देखा होगा नीचे जो चलता रहता है न्यूज की, आज पेट्रोल का दाम इतना है, ऐसा वैसा, जो नीचे पट्टी चलती रहती है ना, दैट इज एन इफेक्ट एंड दैट इज कॉल्ड, जब वो आता है तो उसको एंट्रेंस बोलते हैं, और वो जब चला जाता है तो उसको एग्जिट बोल देते हैं। ठीक, क्लियर है? Yes ma'am. Yes ma'am. That is also an animation. That is also an animation that has been added to that video. अब वो उसका सॉफ्टवेयर अलग होता है, but right now we are talking about PowerPoint, so you can also do that in PowerPoint as well. Now emphasis, this effect determine how the object on the slide draw attention to themselves. अच्छा, तो आप लोगों ने कभी टीवी एड देखे हैं जिसमें लिखा रहता है कि ऋण अब 10 रुपए में भी, तो 10 रुपए को बड़ा सा दिखाते हैं, देखा है टीवी एड्स पे? Yes ma'am.
है ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, वो ma'am. हाँ वो Yes, ma'am. that is Yes, ma'am. that is called an emphasis effect. एम्फसिस करते हैं, वो 10 रुपए को दिखाने के लिए उसको बड़ा सा दिखाते हैं या फिर उसके ऊपर कुछ और डाल देते हैं ताकि उसका आपका ध्यान पूरे एड में से उस 10 रुपए के ऊपर जाए. So that is known as emphasis. These effects determine how the object on the slide draw attention to themselves. Thus, during the slideshow, this effect makes an object shrink or grow in size, change color or spin in center. ठीक, अभी तक क्लियर है सभी को? एंट्री, एग्जिट, एम्फसिस, these 3 points are clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Everyone? Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Motion. Okay. Motion paths. Now you can use this effect to make an object move up or down, left or right, or star in circular pattern, etc. These effects enable the objects to move from one position to another on a slide and on the specified path during the slide show. ठीक, क्या होता है कि जैसे कि हम लोगों ने कोई वीडियो देखा जिसमें ना कोई टेक्स्ट मूव हो रहा है, मतलब जैसे गोल घूम रहा है या फिर ऊपर नीचे जा रहा है. जैसे आप लोगों ने एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो नीचे से ऊपर आता है या ऊपर से नीचे चला जाता है कोई भी एड. ठीक, तो वो कैसे होता है? दैट इज थ्रू मोशन पाथ. ये अगर आपको कोई ये माइक्रोसॉफ्ट में रहते हैं कि अगर आप उसको सेट कर देंगे तो वो वर्ड स्टार की तरह घूमने लगेगा, मतलब स्टार पैटर्न में बोल रहे हैं, नहीं तो सर्कुलर पैटर्न में घूमेगा, नहीं तो अप एंड डाउन होता रहेगा, लेफ्ट या राइट जाता रहेगा. ये आप डिसाइड करेंगे कि किस मोशन में घूमेगा. ठीक, to view more animation effects of each category, select the desired object available at the bottom of add animation drop down menu. You can also click the more drop down arrow in the animation group to select an object animation effect. You can add more than one animation effect to same object or can apply the same animation effect to multiple objects by using the options in the animation group. Choose the desired animation effect from the displayed menu. After applying an animation effect to an object or text, you will notice that a numbered tag appear adjacent to the object on the slide panel. तो PowerPoint 2010 में ये फीचर होता है कि PowerPoint 2010 में ये फीचर होता है कि जब भी आप किसी वर्ड या किसी पिक्चर में कोई भी एनिमेशन डालते हो तो जो भी वर्ड होता है उसके ऊपर एक टैग आ जाता है. टैग का मतलब क्या होता है? नंबर टैग, मतलब 1 2 3 4. वो आपको दिखाता है कि यू कैन स्पेसिफाई व्हेन एन एनिमेशन शुड बी प्लेड on drop down button of the start box in the timing group and select any one of the displayed option. देखो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी बोला कि मैंने एक प्रेजेंटेशन बना रही हूँ जिसमें मुझे दिखाना है कि आपके स्कूल टाइमिंग चेंज हो गए हैं. ठीक है, मैंने प्रेजेंटेशन तो बना ली जिसमें मैंने लिखा कि 6th BNC school timing will be changed from tomorrow to 10 AM to 12:30 PM. ठीक है, लेकिन अब मेरे को क्या करना है? मेरे को 6th ANC को पहले, BNC को पहले लाना है और उसके बाद मेरे को दिखाना है कि टाइम कितना हुआ है, मतलब टाइम क्या है आपका. तो आप इसको भी तय कर सकते हैं कि क्या कब एनिमेशन प्ले होगा. जैसे वो छोटा सा एक बॉक्स देख रहे हैं पेज नंबर 45 पे, स्टार्ट ऑन क्लिक विथ प्रीवियस आफ्टर प्रीवियस. तो आप ये तय कर सकते हैं कि कब आप शुभ प्लीज म्यूट योर वॉइस इज कमिंग. Okay, so you can select when you want your animation to be played. कब, जैसे क्लिक पे होना चाहिए या फिर पिछले वाली स्लाइड जैसी खत्म हो.
जागृति, म्यूट योरसेल्फ. हाँ, तो कब प्ले होना चाहिए ये भी आप तय कर सकते हैं. जैसे कि ऑन क्लिक टू स्टार्ट द एनिमेशन आफ्टर अ माउस क्लिक. तो जब आप माउस क्लिक करें तभी आपके स्लाइड की एनिमेशन चालू हो. with previous to start the animation at the same time with the previous. To start the animation at the same time as the previous animation effect in the list. तो मतलब इसका मतलब ये कि जैसे पिछला वाला खत्म हो वैसे ही अगला वाला भी एनिमेशन चालू हो जाए. आफ्टर प्रीवियस टू स्टार्ट द एनिमेशन इफेक्ट इमीडिएटली आफ्टर द प्रीवियस इफेक्ट फिनिशेस. सॉरी, विद प्रीवियस मतलब कि जो पहले वाला वर्ड है या स्लाइड है उसके साथ साथ आपका एनिमेशन चले. और आफ्टर प्रीवियस का मतलब है कि टू स्टार्ट द एनिमेशन इफेक्ट इमीडिएटली आफ्टर द प्रीवियस इफेक्ट इन द लिस्ट फिनिशेस. ठीक है. टू स्पेसिफाई और सेट द टाइमिंग्स ऑफ द इफेक्ट यूज ड्यूरेशन बॉक्स अवेलेबल इन द टाइमिंग ग्रुप. इट हेल्प्स टू चेंज एंड कंट्रोल द स्पीड ऑफ द एनिमेशन इफेक्ट. अब इसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने एनिमेशन की टाइमिंग भी बता सकते हैं कि जैसे मुझे 30 सेकंड के लिए ये एनिमेशन चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए. तो आप ये भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपका एनिमेशन कितने देर तक चलेगा. Likewise, you can set the delay time before the animation begin using the delay box. अब जैसे कि मैंने एक स्लाइड बनाया जिसमें मैंने कह रही हूँ कि 6th B and C की स्कूल टाइमिंग चेंज हो गई हैं. ठीक. तो मैं ये भी कर सकती हूँ कि मैं जैसे ही 6th A and B आए उसके बाद जैसे कि 6th A and B आए उसके थोड़े देर बाद यानी 6th A and B आया, एंट्री हुआ उसका. वर्ड की बात कर रही हूँ, टेक्स्ट. आप लोग इमेजिन कर पा रहे हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जैसे ही Yes, 6th ma'am. A and B, जैसे ही Yes, ma'am. जैसे ही 6th A and B का स्लाइड आए, ठीक है, सॉरी स्लाइड वर्ड आए एक स्लाइड में, उसके 5 सेकंड के बाद मेरा दूसरा एनिमेशन चालू होना चाहिए. ठीक है. वो एनिमेशन 10 सेकंड तक चलना चाहिए. तो ये जो गैप है एनिमेशन के बीच का ये भी आप तय कर सकते हो. आप चाहो तो दोनों वर्ड्स को, दोनों टेक्स्ट बॉक्स को एक ही साथ एनिमेट करके एक ही साथ शो कर सकते हो. लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि 6th B and C पहले आ जाए, उसके बाद चेंजेस इन टाइमिंग दूसरे वर्ड में आए और वो थोड़ी देर के बाद आए, तो वो भी आप कर सकते हो. You can also use the reorder animation button to change the order in which the animation effects appear. वही मैं बोल रही हूँ, reorder animation button से ये होता है कि आप जो एनिमेशन जिस सीक्वेंस में आप चाहो वो आप एडजस्ट कर सकते हो. ठीक. अभी तक क्लियर है? मैं अभी क्लास खत्म होने के बाद आपको एक वीडियो लिंक शेयर करूंगी, उससे आपको ये जो सब बोल रही हूँ मैं ये सब क्लियर हो जाएगा. ठीक है. क्यों मैं अपना स्क्रीन शेयर इसलिए नहीं कर रही क्योंकि कई लोगों का नेट और बैंडविड्थ उतना नहीं है, अपने फोन के नेट से यूज कर रहे हैं सभी, मैं भी अपने फोन के नेट से यूज कर रही हूँ. तो वी डोंट हैव दैट मच बैंडविड्थ, तो जिसके कारण मेरा स्क्रीन लैग होगा और आपको दिखाई भी नहीं देगा. ठीक है. इसीलिए मैं आप लोगों को एक YouTube वीडियो शेयर करूंगी जो मैंने बनाया है, उसको आप देखिए तो आपको ये सारे टर्म्स क्लियर हो जाएंगे कि मैम क्या बोल रही है. ठीक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एडिंग ट्रांजिशन इफेक्ट्स. अब हम लोग ट्रांजिशन इफेक्ट्स को ऐड करेंगे. अंडरलाइन करिए. ट्रांजिशन इफेक्ट्स अपीयर व्हेन वन स्लाइड चेंजेस टू अनदर स्लाइड ड्यूरिंग द स्लाइड शो रिव्यू. You can apply transition effect to a single slide as well as to all the slides of the presentation. Transition effect से लेके presentations तक underline कर लीजिए.
Select the slide on which you want to apply the transition. Click on transition tab. Transition to these slides appear in the ribbon displaying multiple transition effects. Click on more drop down arrow to display all the transition effects. Select a transition effect. Figure 5.2 adding transition. पेज नंबर 46 देख रहे हैं सभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखिए आप Yes, ma'am. Yes, ma'am. सेलेक्ट द इफेक्ट दिख रहे हैं, कवर, फ्लैश, डिसॉल्व, चेकरबोर्ड, ड्राइंग. हाँ जी, पेज नंबर 45 और 46. 46 फिगर 5.2. तो पेज नंबर 46 फिगर 5.2 शुभ. Okay, ma'am. Okay. Select the effects in the transition to this slide group to choose any effect from the displayed list. Some of the transitions are like curtains, prestige. These options remain deactive. Click on the drop down arrow of the sound option in the timing group. ठीक है, अब यहाँ तक तो था ट्रांजिशन ऐड करने का. अब इसके बाद आप साउंड्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि उसी के बाजू में देखिए साउंड लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे नो साउंड है. ठीक, तो आप साउंड उसको जो ड्रॉप डाउन, जो नो साउंड के बाजू में एक छोटा सा एरो है उसको क्लिक करेंगे तो आपका साउंड ऑप्शन खुल जाएगा. सेलेक्ट एनी साउंड इफेक्ट ऑफ योर चॉइस. क्लिक ऑन प्रीव्यू बटन. प्रीव्यू बटन देखिए लेफ्ट कॉर्नर में है, फाइल के नीचे. सभी को दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो अगर इसको दबाएंगे ना तो आपको एक प्रीव्यू दिखाएगा. प्रीव्यू मतलब इन द सेंस कि आपका स्लाइड में क्या क्या है और आप उसको देख सकते हैं. हर स्लाइड को अलग अलग करके आप देख सकते हैं. आपको हर बार पूरी स्लाइड को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप जिस स्लाइड में हैं उस स्लाइड को आप प्रीव्यू बटन दबाएंगे तो आपने जो जो एनिमेशन डाला है वो प्ले हो जाएगा. Specify the transition timing by enter the number of seconds or minutes in the duration box in the timing group. Select on the one mouse click checkbox if you want to advance the slide by clicking the mouse. ठीक है, देखिए ड्यूरेशन दिया हुआ है, उसके बाजू में ऑन माउस क्लिक पे टिक मार्क. इसका मतलब ये है कि आपका स्लाइड आगे कैसे बढ़ेगा, जब आप माउस क्लिक करेंगे तब आपका स्लाइड आगे बढ़ जाएगा. देखिए क्या होता है, जब भी हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो दो लोग खड़े होते हैं, एक कंप्यूटर, एक लैपटॉप के पीछे और एक जो एक्चुअल में प्रेजेंटेशन दे रहा है. क्या होता है, जब भी जो भी लैपटॉप के पीछे या सिस्टम के पीछे खड़ा होता है वो जैसे जैसे स्लाइड कवर होता जाता है या जैसे जैसे स्लाइड एक्सप्लेन कर लेते हैं तो वैसे वैसे वो माउस क्लिक कर करके नेक्स्ट स्लाइड करते जाता है. या तो आप अपने लैपटॉप या सिस्टम में जो एरो कीज होते हैं उससे भी आप अपने स्लाइड को कंट्रोल कर सकते हैं. Click on the after checkbox if you want the slide to automatically to the next slide after a certain period of time. अब उसी के नीचे देखिए आफ्टर लिखा हुआ है. आफ्टर मतलब कि अगर आप चाहो माउस क्लिक नहीं करना है आपको, आप चाहते हो कि 1 मिनट के बाद ये स्लाइड अपने आप नेक्स्ट हो जाए तो यू कैन पुट द नंबर देयर 1 मिनट एंड यू कैन सेट इट. तो अगर आप उस पर टिक करोगे फिर आपको टाइमिंग भी देना पड़ेगा, तो उसके बाद 1 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली आपकी स्लाइड अपने आप नेक्स्ट होती जाएगी, यानी 1 से 2 चली जाएगी. क्लिक ऑन द अप्लाई टू ऑल बटन टू द सेलेक्टेड. अब आप ये कर सकते हो कि जैसे आपने एक स्लाइड बना लिया, उसमें एनिमेशन भी डाल दिया, अब आप चाहते हो कि सारी स्लाइड में सेम एनिमेशन हो तो आप क्लिक ऑन अप्लाई टू ऑल बटन कर सकते हो, जिससे कि सारा स्लाइड में यही इफेक्ट कॉपी हो जाएगा. Now open the slideshow tab and click on the from beginning button.
यहाँ पे नहीं दिया है ऑन बिगिनिंग बटन। द प्रेजेंटेशन विल स्टार्ट स्लाइड शो टैब। अब देखिए ट्रांजिशन के बाद एनिमेशन है, एनिमेशन के बाद स्लाइड शो का बटन है। स्लाइड शो का बटन जब आप क्लिक करेंगे तो अनदर ऐसा ही एक रिबन खुल जाएगा, दैट इन दैट यू हैव टू क्लिक फ्रॉम बिगिनिंग। तो अब आप जैसे यहाँ पे प्रीव्यू में आपका सेलेक्टेड जिस स्लाइड पे आप हैं उसी को दिखाएगा, लेकिन अगर आप फ्रॉम बिगिनिंग चालू क्लिक करेंगे तो आपका स्लाइड 1 से आपको प्रेजेंटेशन दिखाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next, we will end the class with this topic in inserting sound clips. After that, we will end the class. Okay. Music or sound effects can add new dimension to any presentation. You can add sound in the form of background music or special effects to give importance to specific content. Sound effects can be added from the files stored in your computer. You can even record your own sound, or you can or can also add music from a CD. तो अब क्या होता है, जैसे आपने ऐड देखा होगा, कोई भी ऐड देखा होगा जिसमें पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है, या फिर यूट्यूब वीडियो देखा होगा जिसमें बैकग्राउंड में, या म्यूजिक वीडियो ही कोई भी देखा होगा, तो म्यूजिक वीडियो में तो डांसर डांस करते रहते हैं और जो सिंगर होता है वो तो लिप सिंक करता होता है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका है अपना गाना और वो उस समय वो एक्ट करता रहता है कि वो गा रहा है। तो उसको कैसे अचीव करते हैं, उसको अचीव करते हैं कि आपकी जो मूवी चल रही है उसके बैकग्राउंड में म्यूजिक डालते हैं। अब ये तो पावर पॉइंट में हम म्यूजिक कैसे डालेंगे? सेलेक्ट द स्लाइड ऑन विच यू वांट टू ऐड साउंड, क्लिक ऑन सेलेक्ट द इंसर्ट टैब। देखिए फिगर 5.2 में ही सेकंड में होम के बाद एक इंसर्ट टैब दिख रहा है, क्लिक ऑन द ऑडियो। देखिए अगर आप 5.5 अगर आप पहले इंसर्ट को क्लिक करेंगे तो उसके बाद फिगर 5.3 चालू होगा, इंसर्टिंग साउंड। तो देखिए वहां पे ऑडियो लिखा हुआ है, ऑडियो में ऑडियो को क्लिक करेंगे तो ऑडियो फ्रॉम फाइल, ठीक है, वो आ जाएगा। The audio file will be added to the slide indicated by audio icon on the slide. Two additional tabs namely format and playback appear under the audio tools tab on the ribbon. On the playback tab in the audio options group, select either automatically on click or on click options from the drop down list of the started field. The automatically option will start the sound automatically as soon as the slide appears in the slide. Yes, what happened, Shubh? तो क्या होगा, जैसे आपकी स्लाइड आई, फॉर एग्जाम्पल आपने स्लाइड नंबर 2 में म्यूजिक ऐड किया है, तो दो चीजें हैं, अगर आप चाहो तो ऑटोमेटिकली आपका जैसे ही आप स्लाइड 2 में आओ वैसे ही आपका म्यूजिक ऑन होना चालू हो जाएगा। नहीं तो अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो कि ऑन क्लिक ऑप्शन विल प्ले द साउंड ओनली व्हेन यू क्लिक द लेफ्ट माउस बटन। तो जब भी अगर आप चाहो तो ऑटोमेटिकली म्यूजिक प्ले हो सकता है, नहीं तो अगर आप चाहो तो आप ये चाह रहे हो कि जैसे मैं बोलूं कि आई एम गोइंग टू द, जैसे कि सीरियल्स में होता है कि जैसे कोई कुछ बोलता है तो पीछे एकदम बूम 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 म्यूजिक चालू हो जाता है, तो जैसे उस इफेक्ट को पाने के लिए भी आप चाहो तो ऑटोमेटिकली कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो माउस क्लिक पे भी आपका ऑडियो प्ले हो सकता है। Now to play sound, click on the audio icon and play on pause tab appears right below the speaker icon. ठीक है, अंडरस्टूड? यहाँ तक सभी को क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. ठीक है, तो अब एक असाइनमेंट आप लोगों का आज का रहेगा, क्योंकि यू हैव टू रीड इट, you have to read till Yes, ma'am. page number 47, page number 45, sorry 44। एक मिनट, मेरे को आज का असाइनमेंट बताने दीजिए, मेरे को आज का असाइनमेंट बताने दीजिए। पेज नंबर 44, 45, 46 और 47 का जहां तक मैंने पढ़ाया है
ठीक, you have to read it, understand it. और नेक्स्ट क्लास में मैं किसी से भी पूछूंगी कि हाउ टू अप्लाई एनिमेशन इफेक्ट, व्हाट इज एनिमेशन, व्हाट इज स्लाइड, हाउ टू ऐड ट्रांजिशन इफेक्ट्स, मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ. ठीक है, so you have to be prepared for it. That is your assignment. ठीक. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. So that will be all for today. I have recorded this class and I will upload this into the YouTube channel. I will give you the link as well. You can rewatch this class again. जी. हाँ जी, कौन बोला? You can raise your hand if you want to talk. Yes, who is talking? Yes, Harshit. Ma'am, Harshit. ma'am, there is a network problem and I don't listen that you say. So that's what I'm saying. If you want to re-watch this class, if you want to watch what happened in the class again, you can watch the video because I have recorded this class and it will be on a YouTube channel as well. And for today's assignment, Harshit, you have to read page number 44, 45, 46 and 47 up to where I have taught. That is up to inserting sound clips तक पढ़ाया है मैंने. तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा. जो जो मैंने टिक लगवाया है उसको आप लोगों को समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा. I can ask anyone in the next class to tell me what is the definition of presentation, what is the definition of slide. Understood, Harshit? I will also write it down in the WhatsApp group. Okay? Yes, ma'am. So that will be all for today. Thank you. Have a nice day. Thank you, ma'am. Thank you, Bye. ma'am. Thank you, Thank ma'am. you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Bye. Thank you, ma'am. Bye-bye.